देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। यूके में द ग्लोबल रिट्रीट सेंटर की हुई ग्रैंड रीओपनिंग। आज बुलेटिन की पहली खबर विदेश में यूके के ऑक्सफोर्डशायर से है, जहां द ग्लोबल रिट्रीट सेंटर की 5 वर्षों के रिनोवेशन के बाद ग्रैंड रीओपनिंग की गई। इस भव्य समारोह में देश दुनिया से कई वरिष्ठ बीके सदस्य पहुंचे, जिसमें न्यूयॉर्क से संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी और लंदन से राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, अफ्रीका में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके वेदांती, जर्मनी में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुदेश, साथ ही मुख्यालय से संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। सुंदर और मनमोहक प्रस्तुतियों के माध्यम से सभी बीके सदस्यों ने अपने दिल के भाव व्यक्त किए, साथ ही भविष्य में इस रिट्रीट सेंटर से होने वाली सेवाओं के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। It's hard to take courage in a world full of people. You can't lose sight of it all, and the darkness inside you can make you feel so small. And I see your true colors shining through. Let's go. Who am I? Who am I? Who is mine? Who is mine? Yeah. What's my task? What's my task? Peace are not just few words like peaceful, but it's experience. Each one of us, our eternal nature is peace. Yes, you all believe that? Peacelessness, conflict, or any kind of negative feelings are not natural. The journey within, in which I discover who I truly am and come to the essence of the being that I am, is a very beautiful journey. Sometimes a challenging journey, because I'm so attached to those masks. Only thing is, for me, Baba's service was first and all other things secondary, and that gave me joy, made me light and made me stronger, and got me into all the understanding that drama is accurate and we are souls. Souls are immortal, I lose nothing. And peace in the self, peace in the family, peace in the community, peace in country and world. We need to plant the garden of peace, peace flower in our consciousness. इस आयोजन में मुख्य अतिथियों में मार्स्टोन एवं नॉर्वे डिवीजन के काउंटी काउंसलर मार्क लाइगो, लंदन में हाई कमीशन ऑफ इंडिया में डिप्लोमेट सर्वजीत सूदन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की फॉर्मर मेंबर बैरोनेस शांति वर्मा और पूर्व पेरिस प्रिस्ट डॉक्टर मार्कस ब्रेब्रुक ने भी विशेष रूप से उपस्थित होकर अपने विचार रखे। So during this time was through the pandemic, and everything was about well-being, fitness, moving more, caring, connecting, sharing, and looking out for each other. And that's one of the benefits of this retreat. To come here, take a break from the magic of our computer and mobile screens and away from the confines of our offices, to find ourselves, to find the inner peace, tranquility. Once again, congratulations and best wishes to this organization, which, as my wife put in when we were coming through this journey from London to Oxford. I've often wondered what it is that when I come into Harmony House or when I go to Mount Abu, what is it that suddenly encapsulates peace? And I find it's because the people start by their journey with a smile. Everything is encapsulated in their welcome. So when you enter, and like you did today, you saw people smiling at you. Smiling costs us nothing. The true meeting comes as we can allow ourselves, in our different traditions, to find that inner peace, so that flows out as like a sort of healing stream. So
I owe a great deal to the Brahma Kumaris and so grateful to them and their contribution to the world. And I think like that peace is flowing like a river and it flows out from our hearts. इस भव्य समारोह में विशेष मेडिटेशन सेशंस का आयोजन रहा जिसमें सभी ने राजयोग की गहराई से शांति का अनुभव किया। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मंदा, बीके मॉरिन, बीके जैमिनी, बीके अरुणा समेत कई वरिष्ठ बीके बहनों का इस कार्यक्रम के लिए पूरा सहयोग रहा। इस ग्रैंड रीओपनिंग में केक कटिंग कर सभी ने खुशियां मनाई। बीके शिवानी ने हजारों को दिया खुशनुमा जीवन का मंत्र। भिलाई के बाद छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भव्य पब्लिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें धर्म सत्ता, राज्य सत्ता एवं अध्यात्म सत्ता का महासमागम बहतराई स्टेडियम में देखने को मिला। खुशियों का पासवर्ड विषय पर उद्बोधन देने ब्रह्मा कुमारीज की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रेरक वक्ता बीके शिवानी का स्वागत पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह, विधायक शैलेश पांडे, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, अटल यूनिवर्सिटी के कुलपति एडीएन वाजपेयी, एसईसीएल के मुख्य सत्कर्ता अधिकारी जयंत कुमार खमारी, रेलवे के डीआरएम प्रवीण पांडे, डीआईजी भवानी शंकर नाथ समेत कई गणमान्य महानुभावों द्वारा किया गया। लोगों से खचाखच भरे स्टेडियम में जब बीके शिवानी ने ओम शांति के मंत्र से अपने संबोधन की शुरुआत की तो मानो पूरा स्टेडियम शांति के समंदर में तब्दील हो गया। हम सारा दिन बहुत सोचते रहते हैं। हर 1 घंटे के बाद अगर हम 1 मिनट रुककर ये एक्सरसाइज कर लें तो उसका प्रभाव हमारे अगले 1 घंटे पर पड़ेगा। हमारे मन की गति धीमी होगी और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा हर संकल्प सही होगा। कार्यक्रम के माध्यम से हजारों लोगों ने यह बात गहराई से समझी कि संकल्प से सृष्टि बनती है। अगर हमारे द्वारा सबके लिए दुआएं ही निकले तो इस कलयुग को सतयुग बनते देर नहीं लगेगी। कार्यक्रम में इंदौर की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता, भिलाई सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके आशा समेत अन्य बीके सदस्यों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का कुशल संचालन टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का लाभ लेने बिलासपुर एवं आसपास के गाँवों के अलावा रायगढ़, बरगढ़, कोरबा, खरसिया से काफी लोग पहुंचे। जगदम्बा भवन में युवाओं के लिए विशेष सम्मेलन। पुणे के जगदम्बा भवन में यूथ फॉर वेलबींग एंड बेटर वर्ल्ड विषय पर युवाओं के लिए सम्मेलन आयोजित हुआ। अवसर पर मुख्य अतिथियों में 1998 बैच के आईपीएस अफसर, आयरनमैन नाम से प्रसिद्ध महाराष्ट्र पुलिस के प्रमुख कृष्ण प्रकाश ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रह्मा कुमारीज के आध्यात्मिक विचारधारा के माध्यम से यही विचार फैलाया जा रहा है कि सभी अपने आप में संपूर्ण हैं। अपने विचारों से ही अपने कर्म बनते हैं। जरूरत है अपने विचार सोच को बदलने की। आगे पुणे के विद्यार्थी गृह के अध्यक्ष सुनील वेड़कर, पुणे यूनिवर्सिटी के एनएसएस डिवीजन के अध्यक्ष सदानंद भोसले, मेजर जनरल अजय पाल सिंह, तो वही युवा प्रभाग की उपाध्यक्ष बीके चंद्रिका, जगदम्बा भवन की संचालिका बीके सुनंदा, वरिष्ठ राजयोगी बीके दशरथ ने भी अपने विचार रखे। इसी क्रम में आगे युवा प्रभाग की प्रवक्ता बीके रीटा ने प्रभाग द्वारा देश भर में हो रही अनेकानेक योजनाओं और सेवाओं की जानकारी दी, तो वही बीके नलिनी ने राजयोग के अभ्यास से सभी को शांति की अनुभूति कराई। कार्यक्रम में आयांश लीडरशिप एकेडमी से आए लगभग 50 विद्यार्थी भी शामिल हुए। आइए इस कार्यक्रम की और जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता से। आज जो युवाओं का कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम में सिंहगढ़ कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल विजया मैडम वो आए हुए थे और उनसे पूछते कि आज का कार्यक्रम जो है वो कैसा लगा उन्हें। आज का कार्यक्रम मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक प्रकार का सुकून सा मिल गया इसमें और थीम इज़ एक्सलेंट दैट यूथ फॉर बेटर वर्ल्ड। दिस इज़ नीड ऑफ एन आवर। युवाओं को खुद की पहचान होनी चाहिए और उनके अंदर ही उनका हीरो है। सभी तरफ खुद की पहचान ढूंढने से खुद को पहचानो और खुद को डेवलप करो। इसी से राष्ट्र भी बढ़ेगा, राष्ट्र का भी नाम रोशन हो जाएगा। तो उसमें से आपको क्या ऐसा लगता है कि कौन सी बात आपको अच्छी लगी? वैसे अगर बोला जाए तो पूरा इंस्पिरेशनली था और ये यूथ के लिए था और अभी हमें समझना चाहिए कि यूथ जो आ रहे हैं योगा में उसकी ज़रूरत है, इसके लिए आ रहे हैं। और जो हमारी परंपरा चलती आई है अभी तक योगा की और मेडिटेशन की और जो मैं अभी सीख रही हूँ और अभी जो सिखाने वाली हूँ, इसके लिए आज के जो प्रोग्राम में बताया गए हुए जो भी चीज़ें थी उनका बहुत हमें यूज़ हुआ। हैदराबाद में स्थानीय लोगों के लिए बने आध्यात्मिक लाइट हाउस का केंद्र ब्रह्मा कुमारीज के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर पर संस्था के अनोखे वृक्षारोपण अभियान कल्पतरु प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग की गई। इस अवसर पर स्वयं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संतोष कुमार ने शिरकत कर पौधारोपण किया। साथ ही संस्था द्वारा हो रही सेवाओं की जमकर सराहना भी की।
इस अभियान के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक पौधा लगाकर 75 दिनों तक उसकी देखभाल जरूर करनी है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण से ही जीवन संभव है। यह आयोजन शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके कुलदीप के निर्देशन में हुआ, जिसमें सभी बीके सदस्यों ने अपना पूरा सहयोग दिया। कार्यक्रम में संतोष कुमार को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। साथ ही मुख्यालय माउंट आबू में आगामी होने वाले ग्लोबल समिट का निमंत्रण भी दिया गया। उन्होंने रिट्रीट सेंटर के परिसर का अवलोकन कर ईश्वरीय प्रसाद भी ग्रहण किया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।